आगे देखो क्या क्या विजडम यूजिंग योर इंटेलिजेंस फॉर वर्क इन प्रेजेंट सिंपल फूड प्लांट बेस्ड इज फॉर पीस लाइफ लिविंग ऐसा था इफ यू बेंट देन यू कैन साइलेंट फॉर पीस इफ एनीवन इज डिप्रेस्ड मीन्स यू लिव इन पास्ट और प्रेजेंट never copy others. See the God present in the inner side of yourself, your soul. Your exam is different from others. Keep yourself in discipline. Fire yourself in hard work. Work. God is best version of yourself. God is always with the hard workers who think their work as their worship. Don't leave your work or your aim. If you will work, then only your time will come. Don't say your time will come. First do hard work for it, then only your real time will come. Don't surrender from your work because it shows you as a poor performer. Become successful, then everything will happen automatically. कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है. नो कॉम्प्रोमाइज इन स्लीपिंग स्टडिंग ईटिंग. राकेश झुनझुनवाला. भाई क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे स्लीपिंग में ईटिंग में पढ़ाई में नहीं करेंगे चलिए पर उनका कहना सही है कोई बात नहीं. वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लोज. जहाँ पर फोकस जाता है वहीं पर एनर्जी फ्लो होता है. Inner motivation is inner energy, not any other thing. Sleep early in the night. 1 बज रहे हैं अभी 1:30 बजने वाले हैं. Only 2 people patient and bhogi awake in the night. Use your physical energy. Eyesight down, focus down, timetable down. If you are not developing good habits, then the world is already full of bad habits and it's not easy to learn good habits. Eat little in night like a laborer. लेबर मतलब रात में कम खाओ जैसे एक लेबर खाता है. जैसे दलिया खाओ खिचड़ी खाओ ऐसे. डाइट एंड एक्सरसाइज आर. पता है दलिया तो हमारे दोस्त खाते हैं. डाइट एंड एक्सरसाइज आर टू फाउंडेशन फॉर सॉल्विंग एनी एडिक्शन. पता नहीं मैंने कभी खाया होगा कि नहीं पर मुझे नहीं पता सच में कि दलिया कहते किसको है. If you have addiction of something, then you will regret. अगर तुम्हें किसी चीज़ की लत है तो तुम्हें regret होगा. By which you can lose and you can't fulfill that thing. Chest, stomach or foot up and bent while lying on your bed. Leg rises or crunches before 15 days your menstruation cycle. Nothing has any shortcuts. Drink warm water. अच्छा ये सभी हम लिखते थे. वॉरेन बफी ऑफ इंडिया. राकेश झुनझुनवाला. अब्राहम लिंकन. कुल्हाड़ी की धार 4 घंटे. हाँ अब्राहम लिंकन का कहना ये था कि अगर मुझे पता है कि लकड़ी को कुछ मुझे काटना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो सबसे पहले मैं कुल्हाड़ी में 4 घंटे धार करूँगा और फिर मैं उसको 2 घंटे में काट डालूँगा बजाय इसके कि मैं उसी कुल्हाड़ी से बार बार काटता रहूँ. आफ्टर एक्सरसाइज ओनली 15 days you can feel sleepy but not after that. After exercise only 15 days you can feel sleepy but not after that. अच्छा. जुनून जज्बा for doing anything in life you will gain energy. You will become healthy. Seed of आलसी सुकरात Aristotle. ये क्या है? First make your daily planning without error and without lack of time. Second make your that day's planning of work which you must have to do. If you have any other task other than study also. Loneliness is the mother of illness and solitude is the mother of wellness. Solitude कब ना हो. Loneliness तो होती है कोई बात नहीं इसको solitude में बदलना है. Desire of others love with damage you. नहीं desire of others love will damage you. The only true love is self-love and all the thing is useless. If you are not doing anything or not able to do something for this world, then you are useless for this world and there is not any value of your respiration. ये मैंने लिखा था और मैं ही उस चीज़ को भूल गई.
If you are not doing anything or not able to do something for this world, then you are useless for this world and there is not any value of your respiration. बात तो सही है. अभी हम उसी सिचुएशन में हैं. Solitude living person do deep work and they don't leave anyone to roam around you because now I love only solitude. Solitude person by taking pen and the paper they write what to do next day but in real they are writing their future. कितनी अच्छी चीज़ लिखी है कि वो अपने पेपर और कलम पे वो लिखते हैं जो उनको नेक्स्ट डे पे करना है, लेकिन वो ये नहीं लिखते, वो रियल में लिख रहे होते हैं उनका फ्यूचर. एंड इफ़ they do that written thing properly then their days, weeks and month is perfect and by doing this regularly their life become an ideal life and those people create a great story in the book of history. मुझे भी क्रिएट करनी है भाई, पर मैं तो भूला करूँ. कोई नहीं, हो जाएगा. डोंट ओवर थिंक वो क्या वो गो इन योर लाइफ, डोंट थिंक अबाउट अदर्स. ये हमारे मित्र साहब ने हमें कहा था. पर बात तो ये भी है कि कुछ लोग खुद भी फॉलो नहीं करते, पर हम बुराई नहीं कर रहे हैं. पर हाँ, कोई नहीं. द वर्ल्ड इज़ ओनली फैन ऑफ परफॉर्मेंस. You are like a leaf of a tree. If you will stop doing photosynthesis, then you will fall down by the tree because there is no meaning of your presence on that tree. कितनी अच्छी चीज़ लिखी थी मैंने, मतलब कहीं से लिखी थी पर मैंने अपनी डायरी में लिखी तो मैं कैसे भूल सकती हूँ. You are like a leaf of a tree. If you will stop doing photosynthesis, then you will fall down by the tree because there is no meaning of your presence on that tree. This is the law of nature. Who will work will be strong and the person only be strong if they love themselves. There is no wishes for the presence of others. More you weep, the more the world will try to make you weep. ये होता है मेरे साथ, बहुत होता है. जितना तुम रोगे उतना ही दुनिया ट्राई करेगी तुम्हें रुलाने की. Today or tomorrow, but the world will one day do like this with you. अगर आज नहीं कर रही तो फ्यूचर में करेगी, लेकिन वर्ल्ड आपके साथ ये करेगी, ये दुनिया ये करेगी. इसका तो मैंने अनुभव किया हुआ है. आई एम द वर्ल्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं ही खुद की दुनिया हूँ. देर आर मैनी रिलेटिव्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन. इफ़ यू आर क्राइंग फॉर योर ड्रीम्स देन यू आर एट राइट पाथ. Shoot. Don't join the group before success because after success only with power. You can enjoy the group because group doesn't care for anyone's dream. भाई साहब कहाँ थी तुम, मेरी डायरी कहाँ थी तुम. Don't join the group before success. किसी भी ग्रुप को सक्सेस के पहले मत ज्वाइन करो. आफ्टर सक्सेस ओनली विथ पावर. सिर्फ पावर के साथ वो ज्वाइन होती है. यू कैन एन्जॉय द ग्रुप बिकॉज ग्रुप डजंट केयर फॉर, मतलब सक्सेस के बाद ही तुम पावर के साथ उस ग्रुप को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि किसी को ग्रुप को आपकी केयर नहीं होती बल्कि आपके ड्रीम की भी केयर नहीं होती. Group doesn't care for anyone's dream. If 20 people are going to do anything, then they have the need to ask to you that what to do and how to do. ऐसा खुद को बनाओ. So till 25 years live in solitude. Do any classic work. Everyone has to move from the path of solitude. Strong people never be alone. But to be like a strong person, people has to live alone in solitude. If you want to become or want to do something in your life, then the solitude is the only way to achieve that height. Punishing yourself, putting yourself discipline, making their own plannings and following their own rules. Only your plan can lead you and your life, not others' plan. A warrior who have to do something different from others, but only themselves in solitude, not with help of others. मैं क्यों हेल्प लेती हूँ लोगों का. कुछ होने चाहिए है भाई, कोई बात नहीं. There is limited age. कुछ यानी एक से ज़्यादा नहीं. There is a limited age to work on themselves only till 25 years, not after that.
At the age of 16, Sachin came in Indian cricket team. At the age of 12, he worked practice for 12 hours a day. If you want to live more life, wake up early. जो सचिन तेंदुलकर जी ने किया. और फिर मैंने मारिया मिंको वाला वो स्टोरी पढ़ा था, तो फिर उसके वर्ड मीनिंग्स किए जो हमारे मित्र साहब बोलते थे करने को, और स्कूल में भी समीरा जजी से सीखा था. मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मनचाहा कल्पना को हकीकत में बदलना, ये कोको एफएम से सुना था और ये सब लिखा था. एक संकल्प, गोल सोच समझ कर कि वास्तव में क्या चाहते हैं, लिख कर इन ब्रह्म मुहूर्त. विजुअलाइजिंग, कंप्लीटिंग ऑफ गोल्स, घोषणा जोरदार करना खुद के बारे में. मुझे सब आसानी से नहीं मिलता, ऐसा नहीं. मैं जो चाहता हूँ प्राप्त कर लेता हूँ. कंटिन्यू दिस एंड डू हार्ड वर्क फॉर इट. वो होल डे कुदरत के साथ तालमेल करके मेहनत. नो डाउट इन माइंड. यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना है जो मिला है, जो मिलने वाला है उसके लिए. टुडेज टारगेट, और फिर तनिष्का यादव भी लिखा है मैंने. और टुडेज टारगेट में क्या है, द एड्रेस चैप्टर है, उसको अंडरस्टैंड करना है और सारे जो मैथ्स के फॉर्मूलाज है मैथमेटिकल, उसका हाफ चैप्टर करना है क्योंकि मैथ भी सब्जेक्ट था मेरा. व्हाट इज़ डन टुडे, मतलब आज क्या क्या किया. व्हाट आई डन टुडे, आज मैंने 21 डे चैलेंज रीडिंग किया कुकू एफएम में. और उसके बाद दुकान का काम किया. आभार प्रार्थना, भगवान ने जो हमें दी उसके लिए हमें ईश्वर को आभार देना है. और हम तो सब चीज़ के लिए देते हैं. उन्होंने जो दुख दिया उसके लिए भी, क्योंकि उनके दुख को हम दुख नहीं मानते, उनके दुख को हम सीख मानते हैं. कभी कभी दुख ज़्यादा हो जाता है पर कोई नहीं, परीक्षा लेते टाइम टीचर तो मौन ही रहता है. ग्रेटिट्यूड, जनरल राइटिंग, थैंक्स टू गॉड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑटो सजेशन, आत्म सूचना देना, इनके मुहूर्त, ध्यान, कनेक्ट टू गॉड, थैंक्स, ऑटो सजेशन देना, लिस्ट बनाना, और ये स्ट्रॉन्ग थॉट्स बहुत असरदार है. डिवाइन लाइट मेडिटेशन, सिल्वर, मतलब अच्छा ये सब टेक्निक्स थे उसके. फॉरगिवनेस, मेडिटेशन प्रैक्टिस, माफ़ करना किसी को. टू फॉरगिव दोज पीपल वन बाय वन, इमेजिन पीपल, और उसको माफ़ करो. और माफ़ी मांगना भगवान से भी, ईश्वर से, उनके लिए प्रार्थना करना. और फिर लेटेस्ट पेज ऑफ द माइंड एंड इट्स कंट्रोल. वाह, हम कैसे थे, कहाँ खो गए, हम कहाँ खो गए, वापस आओ. बिफोर क्लास 12th 15 फुल. ये ईशिता लिखा है, क्या लिखा है, मैंने राइटिंग में क्या सीखी मेरी, कोई बात नहीं. रिवाइज वेक्टर, ग्रेविटेशन रिवाइज करना है, एफपीडी, फ्री बॉडी, ऐसे डायग्राम. अच्छा, रिजॉल्विंग ऑफ मोशन, चलो फुल फॉर्म तो याद है. फिर फिजिकल केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल, मैथ्स, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब स्टडी 3 hours ऑफ 11th विद 12th प्लस 6 hours 12th. ये हम थे. परविक चैप्टर ऑफ 11th ऑफ 3 chapters ऑफ PCMB, मतलब अच्छा 3 chapters करने थे. नीट यूजी, ओजवाल मॉक टेस्ट, फिर बायो हैक बुक, और 6 hour क्लास 12th रेगुलर बैच, रिवाइज बाय 1 shot ऑफ क्लास 11th. ऐसा 30 days फिजिक्स 6 day, केमिस्ट्री 6 day. सिर्फ 1 साल है मेहनत करने के लिए, 6 day. इस तरह की प्लानिंग हुआ करती थी मेरी. उल्टा दिख रहा होगा, आई नो. अभी कोई नहीं, सीधा कर देता. ये 30 days, और फिर कैसे कैसे डे में बांटा था मैंने, और फिर लिखा भी था कितना टाइम है मेरे पास और कितना हम किस चीज़ को दे रहे हैं. 6 hour कोचिंग, 6 hour, 2 hours सेम डे रिविज़न, 2 hours 11th रिविज़न, 2 hours क्वेश्चन पेपर टॉपिक्स, बायोलॉजी. ये मैंने टारगेट बनाया था, NE2 पर डे करना था. भाई इस पेज को मोड़ो और ये फिर से स्टार्ट करना है. 10 pages NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. 10 pages NCERT इनऑर्गेनिक में, लेक्चर रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस नोट ऑर्गेनिक में, और फिजिकल केमिस्ट्री हैंडबुक प्लस नोट्स रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स हैंडबुक प्लस नोट्स रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस. मार्च अप्रैल में ही कोचिंग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जून जुलाई अगस्त फिजिकल. अच्छा ऐसे मतलब हाँ, स्टिकी नोट्स में कैन रिवाइज ग्लाइकोलाइसिस. 15 hour स्टडी 1 day, हर एक ब्रेक 3 hour के बाद ही. 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा.
क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम भी होता है 3 घंटा 11 मार्च 24 मार्च 14 दिन क्लास 11th का मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है, 1 शॉर्ट वीडियो पर डे एक चैप्टर का। मेरे को लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जो फिर 1 डे 1 चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर 1 आवर लगाने उसमें, 1 शॉर्ट ऑफ न्यू चैप्टर 6 आवर्स, फिर NCERT PYQ 2 आवर फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या बताएं अब खुद को। लास्ट 7 डे ऑफ मार्च रिविजन। अच्छा मार्च के 7 डे में क्या क्या करना है ये भी लिखा है मैंने। अच्छा काम आएगा इन फ्यूचर टू रिविजन अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट। मतलब कभी कभी ना बिलीव नहीं होता है कि आप क्या क्या कर चुके हो फ्यूचर में, मतलब पास्ट में। रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर मॉक टेस्ट आफ्टर 2 days 1 मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस 300 क्वेश्चन पर डे। और 300 क्वेश्चन पर डे क्या रही हो तुम लोग, मतलब 50 क्वेश्चन भी नहीं करती होगी अभी पर डे का। 3 चैप्टर पर डे, फिजिक्स 50 क्वेश्चन 1 चैप्टर, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन 1 चैप्टर। मतलब क्वेश्चन बना लेते हैं, एनालिसिस। मतलब इतना आलस आता है, ये आलस जाएगा कैसे भाई। हाँ इसमें अभी मैंने पढ़ा था कि रात को ना कम खाओ, जैसे एक लेबर कम खाता है, जैसे दलिया खाओ खिचड़ी खाओ ऐसे ऐसे खाओ। चलो सही है, आज भले खाना नहीं खाया। हेल्थ मेडिटेशन, पानी खाना, फूक फूक कर कदम भोजन में, ऐसा क्या। नो हेजिटेशन इन डाउट, who ask a question is foolish for one time, but if we never ask our doubt then we will become foolish forever। ये चीज़ मेरे साथ होती है। एक बार क्वेश्चन पूछते हैं फिर सर बोलते क्या क्वेश्चन पूछ रही हो तुमको मतलब अक्ल भी है। तो फिर हम डर जाते, सोचते ये क्वेश्चन बहुत सिली होगा, फिर सर मुझे ऐसा बोलेंगे तो फिर नहीं पूछना चाहिए। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। पर यहाँ पे लिखा क्या है, जो मतलब एक टाइम के लिए क्वेश्चन पूछता है तो वो एक टाइम के लिए बस फुलिश होता है, लेकिन जो कभी नहीं पूछता वो तो हमेशा के लिए मूर्ख होता है ना। मैं मूर्ख नहीं बनना है, एक टाइम के लिए बनना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व विद टाइम NCERT 20 से 30 बार, एक्स्ट्रा इफेक्ट हमेशा, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपना 100% देना है। पता है पहले मैं पढ़ती थी ना तो फिर मैं देखती थी, मैं और हम बोलो भाई, हाँ तो हम देखते थे कि हम 100% दिए कि नहीं। हम अपने दोस्त को भी बोलते थे कि अगर पढ़ो ना तो फिर लास्ट में पूछो खुद से कि आपने अपना 100% दिया। अगर अंदर से आवाज़ आई हाँ तो आप सही बात पे हो, अगर ना तो आप नहीं हो उस बात पे। और सिलेक्शन एक दिन जाकर तभी होगा जब हर दिन आपका सिलेक्शन होगा। यानी ज्ञान बांटने में हम नंबर 1 है पर खुद से फॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज़ द चैलेंज फॉर मी, जिसको हम करना है, जिससे पूरा करना है। एक्स्ट्रा इफर्ट हमेशा, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपना 100% देना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी कैपेबिलिटी पर प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा। और 200 भी आए फिर भी वही मेहनत करनी है, बदलना नहीं है। एक्स्ट्रा मेहनत, मेंटल गेम, 20 लाख में 15-20 हज़ार लोग ही कर पाते हैं। मतलब 15-20 हज़ार सीट है तो वही कर पाते हैं। पिछले साल 20 लाख था जब मैंने सुना था, इस बार तो 25 लाख हो गए। और फिर 2025 में देना है मुझे एग्ज़ाम, तब पता नहीं कितने होंगे। किस बच्चे से पूछ सकते हैं हेजिटेशन, किसी बच्चे से पूछ सकते हैं हेजिटेशन, पर मुझे नहीं पूछना किसी से। गूगल बाबा टीचर, ठीक है। क्लास अटेंड करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, जो हम आ जाते कर कर। माइनर मेजर टेस्ट के नंबर ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, लिस्ट लास्ट तक करना है। एक्सीलेंट, मेंटल प्रेशर मेंटेन करना है, यही तो चीज़ है मेंटल प्रेशर। तो कभी कभी सिचुएशन में पढ़ाई के अलावा भगवान तौलते रहते हैं, नापते रहते हैं, कहाँ जाएगा ये बच्चा, लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर। करे तो करे क्या जीवन में, भगवान में परीक्षाएं लेना कम करे तब तो। कमेंट नॉर्मल है, चाहे लिखित हो या मौखिक हो। मार्क्स के अप डाउन्स पर डीमोटिवेट नहीं। बिलीव इन टीचर, दोस्त नहीं बनाने, टीचर पर बिलीव। माइंड प्रेजेंट, क्लास में हिमालय तपस्या 1 साल के लिए। कहाँ भूल गई तुम ये सब जाकर। गोला लगाओ इसको, गोला इसको मोड़ो, अभी दोबारा होगी इस पेज को देखो। 6 enemies ऑफ ह्यूमन, इंसान के 6 दुश्मन। ये तो मैंने इसी बीच लिखा था। काम, क्रेविंग, लस्ट, डिज़ायर, इच्छाएं, लत, ये पहला है दुश्मन। दूसरा है मोह, अटैचमेंट। तीसरा है क्रोध और चौथा है लोभ। 5वां है मद यानी
एरोगेंट। और छठा है मत्सर्य यानी जेलसी। इच्छाएं भ्रमित इंसान को करती है, सही गलत का पता नहीं चलता। एडिक्शन, चाह किसी भौतिक वस्तु को जिसके सामने आप भगवान को भी भूलने लगे। अच्छा एग्जाम्पल, शराबी शराब हासिल करने के लिए अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से वो अपनी क्रेविंग मिटाने लगता है। पैसा, पावर, ऐसी चीज़ जिसके अंतर्गत हम अपनी सोसाइटी, परिवार, दोस्त, समाज का बुरा करने से भी ना हिचकिचाएं, वही काम है यानी क्रेविंग है। मनुष्य के अंदर के दोष में काम नंबर 1 पर है। अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काम जब हमारे दिमाग पर हावी होता है तब हम सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं। शूर्पणखा प्रसंग काम के वशीभूत होकर लिए गए निर्णय का परिणाम है, यानी रामायण में हमें हर चीज़ की खबर मिलती है। दूसरा है क्रोध। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तब उस पर गुस्सा ना करते हुए अगर हम शांति समझदारी से उसको समझाएं तो इसका अच्छा परिणाम मिल सकता है। पर मुझे कहाँ मिला भाई, ऊपर से मतलब लोग, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बुरा बर्ताव करते हैं लोग पर हम प्यार से समझाते हैं, पर मेरे साथ तो कुछ और ही हो गया। कोई नहीं, चलो सिचुएशन गई, अब सीखो उससे और आगे बढ़ो। और जब क्रोध हम पर छा जाता है तब हमें हर चीज़ बुरी दिखाई देती है और हर कोई गलत दिखाई देता है। जब क्रोध हम पे छाता है तो ऐसे में सही निर्णय या सही प्रतिक्रिया देना संभव नहीं। क्रोध से बचने के लिए ध्यान दें कि जो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं, उन्हें किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। हम उन स्थितियों को भगवान पे छोड़ देते हैं। हम परिस्थितियों का सामना शांत मन से करना चाहिए। बाली सुग्रीव, क्रोध में बाली ने अपने ही भाई सुग्रीव को क्रोध के वशीभूत होकर अपना दुश्मन बना लिया था। रामायण। चौथा है लोभ। कामना पैदा करती है, इसे ये सांसारिक जीवन में उलझाता जाता है। किसी आनंद को बार बार अनुभव करना व किसी इच्छा यानी काम को और ज़्यादा पाने की चाहत रखना, इसका अंत आसानी से नहीं होता क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता, जिसे पूरा करने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ज़्यादा और ज़्यादा पाने की चाहत बढ़ने लगती है। यही लोभ है किसी भी भौतिक वस्तु के लिए। सॉल्यूशन, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसे जुटाना चाहिए और जहाँ आवश्यकता का अंत हो वही उसे जुटाना छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम लोग को रोक सकते हैं, यानी अगर ज़रूरत है तब लो और ख़त्म हो गई ज़रूरत तो फिर नहीं। रामायण में सीता माता मृग को पाने का लोभ करती है तो उसे कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसका तो मैंने मतलब लाइफ प्रूफ एग्जाम्पल भी देखा है। मोह, अटैचमेंट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बिना रहने में असमर्थ हो जाए तो इसे ही मोह कहा जाता है। पर मुझे मोह नहीं अब, हाँ पहले था, मैं कह सकती हूँ। इसमें हम अज्ञानता को पोषित करते हैं। अच्छा, अज्ञानता को पोषित करते हैं और आंतरिक चेतना की उपेक्षा करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ हम परमात्मा के एक अंश के रूप में हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस भौतिक संसार में रहते हुए हम केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे आसपास की भौतिक वस्तुएं तथा हमारे इस संसार में बने रिश्ते नाते सभी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। पता है अभी मेरे रूम में कोई नहीं है, एक दीदी रहती है, पर अभी हम सिंगल हैं। कितना अच्छा लग रहा है अकेले रह के, खुद से बातें कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ रिवाइज कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा भी कुछ होनी चाहिए, रिवीजन 24, 26, 27, स्टडीड बायोलॉजिकल क्लास। अच्छा ऐसा ज़िंदगी की राहों में अब तो गम के मेले हैं, भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम शेरनी बने, अपने माँ पापा अपने दोस्त की शेरनी। आजकल कठिनाइयाँ तो बहुत आ रही है, कुछ पर्सनल है, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ शारीरिक है, कुछ मानसिक है, कुछ पारिवारिक है, कुछ आध्यात्मिक है। हम लिखते थे, अच्छा मतलब मन से लिखते थे, पर हमने अपने मित्र से जो सीखा है वो हम कर रहे हैं। सहनशीलता जो है हमें, पर फिर भी इस सहनशीलता को हम और मजबूत बना रहे हैं। दोस्त, बिल्कुल आपकी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह आप अपने जीवन की बाधाओं को अकेले रह कर ही उनका सामना करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं दोस्त, ताकि हम आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से मजबूत बन सके, क्योंकि हमारे मित्र ने हमें स्ट्रांग बनने के लिए कहा है। हम रोज़ अपने मित्र को याद करते हैं, बस बातें नहीं कर पाते, इसलिए हम अपनी भावनाओं को हमारी प्रिय डायरी में नोट
कर रहे हैं ताकि हमारी भावनाएं हमारे अंदर से निकले नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी संसार रूपी पिंजरे में कैद है और घुट घुट कर जी रहे हैं। हमने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया दोस्त। जब से ये तो कुछ इमोशनल बातें हो गई। लिखते लिखते हमारे हाथ भी दर्द करने लगते हैं, पर हमारे मन की बातें कभी ख़त्म नहीं हो पाती दोस्त। कर रहे हैं हम स्ट्रगल। जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमारे पापा बहुत खुश होते हैं। आपने हमें कितने अच्छा समझाया था ना मित्र की पापा माँ बातें माननी है और अपने हर कार्य को खुशी से करना है। ये पता है इसका डेट क्या है? 7 तारीख 8वां महीना 2023 को हम ये चीज़ लिखे थे, और हम अपने दोस्त के लिए लिखे थे, क्योंकि हम जितना उनसे सीखे हैं उतना हम आज तक किसी से नहीं सीखे हैं। लाइक फरिश्ता, ही इज़ फॉर मी। भले आपसे वार्तालाप नहीं हो पाती हमारी, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले। पापा का सारा काम हम खुशी खुशी कर देते हैं। अब मेरा मन नहीं होता था क्योंकि हमें पढ़ाई करना होता था, पर मजबूरी थी, घर में प्रॉब्लम्स थे, तो फिर पापा जो कहते थे वो करना पड़ता था, और ये पापा की भी मजबूरी थी। पापा बहुत खुश होते हैं और जब हम उनका काम खुशी खुशी कर देते हैं, और तब वो हमें बेटा बेटा कहकर पुकारते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हनुमान चालीसा समझ जाए वो कमज़ोर नहीं रहेगा। कारगिल पार्क कोड दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमज़ोर समझना। 1 घंटा अपनी सांस पर ध्यान दो, सब रोग मिट जाएंगे। ये अवध ओझा सर कहते थे। APJ कलाम, इग्नाइटेड माइंड, 13 चैप्टर्स, 13 नियम। अम्बेडकर, बुद्धा एंड हिज गोस्पेल, आई थिंक ये बुक्स है उनके। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड का विजेता कौन हुआ? सिकंदर। अतुलित यश प्रेता कौन हुआ? कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? बुद्ध। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, चैलेंज जिससे आप भाग रहे हो। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, परेशानी, चिड़चिड़ापन, तन को सपने, चुनौतियाँ। विपाशना, अपनी सांसों को आते जाते, बुद्ध की खोज। विपाशना, अपनी सांसों को आते जाते हुए देखना तब कीजिएगा जब आप बहुत परेशान रहिएगा। जो तुम्हें परेशानी के विचार दे रहा है, तुम उसे पलटकर वापस क्यों नहीं दे रहे हो? असट मत करो, बस इतनी देर और कर लो। मोदी जी बुक, एग्ज़ाम वॉरियर्स। अच्छा, रात को 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं छूना है, रूठना नहीं है, टारगेट पूरा किए बिना चैन की सांस नहीं। तुम्हारी सांस तुम्हारे टारगेट है। मैंने आज अपनी दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश की। 13 तारीख 3रा महीना 2024, और मैं उसमें सफल रही। मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। ये प्रकृति मेरा साथ दे रही है, भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे पास जो भी है उसके लिए भगवान जी को धन्यवाद। हम सबके लिए धन्यवाद करते थे, चाहे मेरे पास बुराइयाँ हों, अच्छाइयाँ हों, मतलब बुराई यानी दुख जो हमें सीख दे रहे हैं। अब मुझे कल का इंतज़ार है और खुद पर विश्वास भी कि कल के दिन को मैं आज से भी बेहतर बनाऊंगी। मेरी डायरी को मेरा धन्यवाद। शुभ रात्रि। मोटिवेशन इज़ फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग। जब हमारे पास मानसिक ताकत होगी, हमें कोई छोटा मोटा विचार प्रभावित नहीं कर सकता। यानी मानसिक ताकत की कमी। स्वामी अड़कानंद। यथार्थ गीता पढ़ो, फ्री होम डिलीवरी। अच्छा, यथार्थ गीता वो डिलीवरी करते थे। कबीर, जो व्यक्ति अपने मन को गुलाम बना लेगा वही इस दुनिया पर राज करेगा। पता है हम बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ना मन को गुलाम बनाते हैं, पर एक मोमेंट पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा डिसाइड किया था, भूल जाते हैं और जो मन आता है वो करते हैं, और सोचते हैं कि लाइफ इतनी छोटी है तो फिर एंजॉय करना चाहिए, फिर मेहनत तो हो ही रहा है, पर उस चक्कर में हम लोग मेहनत को कम कर देते हैं। पर कहा यह जाता है कि आप ना मस्ती तभी करो जब आपको लगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ तभी करो जब आपको लगे कि आपका जो मेन गोल है ना वो कंप्लीट हो रहा है, बस में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रही है आपकी मस्ती के कारण, ये वो। लेकिन आजकल हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब परेशान होना, और फिर अपनी दीदी लोग, मतलब दोस्त लोग हैं, उन लोग से बातें करना, ये सब कम करो भाई। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, पर क्योंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए वह दूसरों को इसका कारण बताता है। I am the problem of myself. Wow,
आई लव माई सेल्फ। देखो मैंने टारगेट बनाया था और मैंने उसको पूरा भी किया, पर ये पता है ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, बोलते हैं ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हमको पूरा बदल के ही रख देती है, तो फिर हम जो कर रहे होते हैं उसमें ब्रेकर लग जाता है और फिर हम वो नहीं होते जो हम वो थे, बहुत टाइम लग जाता है। नो एक्सक्यूजेस, 99 पीपल्स ऑफ फेलियर्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये टारगेट कल का, मतलब कल का नहीं है, 16 को मेरा टेस्ट है, उसके लिए बनाया मैंने। और मैंने अपनी डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ पर्सनल है, शेयर नहीं कर सकते, क्या बताएं। मित्रता दिवस एक दिन था तो हम उस दिन भी लिखे थे। बहुत अच्छा लगता है। अब तो कुछ है नहीं शायद ज़्यादा कुछ। बहुत अच्छा लगा खुद की डायरी को पढ़ के। और 75 days challenge, reduce mobile time, increase study time by 5 minutes, and exercise, meditate for 30 minutes, 30-minute revision. Step 1, mindset clear your why. Step 2, consistency. कहाँ गई तो प्रीति, वापस आओ वापस आओ। मेरे साथ अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे मन में साहस अपार है। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए अपने थॉट्स को डायरी में लिख दो, ये हमारे प्रधानाचार्य जी भी बताए थे। 5 deep breath and 2 glass water। किसी चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। लर्न बेसिक प्रैक्टिस टाइम गेम। yearly 2023 monthly list, weekly list, day list, hour minute class online 4 to 8 till 9। कैलाशवादी मुश्किल लामा, ये क्या था पता नहीं। बस इतना, ये मेरी डायरी की कहानी, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। आई एम मिसिंग माई सेल्फ, बट अब हम निकल चुके हैं खुद की खुद। प्रणाम। राधे राधे। पेन गिर गया, कोई नहीं।